हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रो विथ फ्लो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हमारा डे 3 है, बट कल हमने डे 2 का सेशन हाफ ही कंप्लीट किया था, ए सेशन कंप्लीट किया था। इसके लिए आज हम उसका कंटिन्यूएशन करेंगे और बी सेशन स्टार्ट करेंगे करके। कल हमने सीखा गुड मैनर्स। गुड मैनर्स पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, बेग योर पार्डन, बहुत कुछ सीखा। आज हम सीखेंगे न्यू सेशन, वो बी लेक्चर का है, दैट इज पोलाइट फ्रेजेस। इसका मतलब क्या होता है? पोलाइट फ्रेजेस मीन्स यू हैव टू टॉक ऑलवेज पोलाइटली विद पीपल। उसको बोलते हैं कि हमें शांति पूर्वक लोगों से बातें करनी है करके, चिल्ला के, जोर जोर से, झगड़ा करके या गलत तरीके से बात नहीं करनी है करके। इसको कहते हैं पोलाइट फ्रेजेस। ओके, उसका हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज एक्सेप्ट माय apologize for not keeping the appointment. फिर could you please pardon for not keeping the appointment. Okay. Please accept my apologize for not keeping the appointment. यानी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे टाइम लिया बट मैं समय पे नहीं पहुंच सका। इसका मतलब ये होता है कि whenever you take an appointment and you are not on time to meet that people, so you always have to apologize for your mistake, that I am sorry that I have taken an appointment but I could not reach on time. Then second, could you please pardon not for keeping the appointment. इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो समय आपके साथ नक्की किया था लेकिन वो टाइम पे मैं नहीं पहुंच सका, इसके लिए आई एम सॉरी। सो कुड यू प्लीज पार्डन, हमें उसको पार्डन करके रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप फिर से अगेन मुझे मिलोगे क्या, नेक्स्ट टाइम मैं टाइम पे आऊंगा करके। Excuse me for being late. Please convey my apologize. It was all my mistake. I am sorry. I beg your pardon. Please. Please excuse me for being late. When you take an appointment and if you are not on time, so you always have to say, excuse me sir, yeah, excuse me ma'am, I am sorry for being late. Please convey my apologize. यानी आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी apologize या आप उनकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लीजिए करके। It was all my mistake. ये सारी भूल मेरी थी, आपकी नहीं थी। You are always on the time, I am late. So at that time you can use this sentence, it was all my mistake. I am sorry. If you are late to meet someone and someone is waiting for you for a long time, you have to say, I am sorry. I beg your pardon please. यानी
आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है, किसी को कुछ बोलना है या उनको कुछ बताना है, या आपने कुछ बोला उन्होंने सुना नहीं है और आपको फिर से सुनना है, तो यू हैव टू से आई बेग योर पार्डन प्लीज। यानी ये सारे वर्ड्स एक पोलाइट फ्रेज में आते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, when we talk to some respectable person or when we go to some respectable place for a meeting, then you always have to use these words. So these words are going to help you in your presentable manner. Okay, next. May I have your attention, please? Will you please permit me to speak? It's all yours. Let me also help you in your work. Will you please move a bit? Okay. May I have your attention, please? Yani, whenever you go for any meeting or any presentation or any school program or any school function, and somebody is speaking something very important and you all are not listening to that words, and that people are talking personally with each other, at that time they are saying, may I have your attention, please? So you need to always listen to that person. That person is going to say something important. यानी हम कहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग चल रही है, स्कूल की मीटिंग चल रही है, पेरेंट्स मीटिंग चल रही है, हम एक दूसरे से बात करते हो, तब सामने वाला इंसान हमें चुप करने के लिए बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो हमें उसकी तरफ देखना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, यानी आप मुझे परमिशन दोगे कि मैं बात करूं, या यू विल ओनली टॉक। If somebody is talking continuously, he is not giving you any chance to speak, then you have to say, will you please give me a permit to speak? यानी आपको भी उसको कुछ बोलना है, तो आप उसको वो टाइम पे ये बोल सकते हैं कि will you please permit me to speak? It's all yours. It's all yours मतलब आप ये सब कुछ आपका ही है। It's all yours. It's not mine. कोई भी चीज सामने वाले की हो या उसे पसंद आ गई हो और आपको नहीं चाहिए, तो यू कैन से इट्स ऑल योर्स। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू इन योर वर्क। अगर कोई काम कर रहा है, वो बहुत थक गया है या उसे वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं ये टाइम पे कि लेट मी ऑल्सो हेल्प यू इन योर वर्क। तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि दिस पर्सन इज वेरी पोलाइट पर्सन एंड ही इज रेडी टू हेल्प मी इन माय वर्क। विल यू प्लीज मूव अ बिट, यानी हमें किसी को बोलना है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, तो हमें वो टाइम पे ये सेंटेंस यूज करना है विल यू प्लीज मूव अ बिट करके, तो वो इंसान वहां से थोड़ा साइड पे हट जाएगा करके। Okay, again a new. Will you please speak slowly?
as you please. Please make yourself comfortable. I will try my level best. Could you please spare a few moments for me? Okay. Will you please speak slowly? मीन्स वॉट, लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हो और उनकी आवाज हमारे कान तक जा रही हो, हमें तकलीफ हो रही हो, हमें सुनने में एकदम प्रॉब्लम हो रही हो, हमें कंटाला आ रहा हो, हमें खिचखिच हो रही हो, हमें इरिटेट हो रहा हो, दैट टाइम यू हैव टू से हिम, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, डोंट शाउट, देन ही विल रिप्लाई यू एज यू से. यानी आप जैसे बोलोगे वैसे हम धीरे से बात करेंगे, चिल्ला के बात नहीं करेंगे करके. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. कंफर्टेबल यानी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, कोई नई जगह होती है, कोई नए लोग होते हैं, कई नया माहौल होता है और हमें डर सा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है. एट दैट टाइम सामने वाला आपको बोलता है प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, डोंट वरी करके. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूंगा आपको, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 100% वर्क डन होगा. एट दैट टाइम यू हैव टू से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. वुड यू प्लीज स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी. हम किसी से बहुत ही प्यार करते हैं या हम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके पास वक्त नहीं है हमारे लिए, तब हमें उसे रिक्वेस्ट करनी है कि could you please spare a few moments for me, यानी आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल सकते हैं कि नहीं. ये सारे वर्ड्स एक पोलाइट फ्रेज में आते हैं करके. Again, sorry for inconvenience. Thanks for your kind, yeah, valuable advice. Glad to meet you. Okay. Sorry for your inconvenience. Inconvenience मतलब क्या? हमारी प्रेजेंस से किसी को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, हमारे होने से उसे नहीं अच्छा लगता है, तब वो बोलता है उसे हमारा प्रेजेंस इसके लिए इनकन्वीनियंट फील कर रहा है, तब हम उसे कह सकते हैं सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस. यानी किसी ने हमें अच्छी एडवाइस दी, उसकी एडवाइस से हमें अच्छा लगा, हमारा काम हो गया, हमें कहाँ फायदा हुआ, तब हम उसे कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस. नाउ ग्लैड टू मीट यू. ग्लैड टू मीट यू का मतलब क्या? हम जब जिससे मिलते हैं और मिलने के बाद हमें खुशी होती है, तब हम उस पर्सन को कहते हैं ग्लैड टू मीट यू. ये एक खुशी का शब्द है कि ग्लैड टू मीट यू. सो एक छोटा सा ब्रश अप कर लेंगे जस्ट रिमाइंडर में कि हमने गुड मैनर्स और पोलाइट मैनर्स में क्या क्या सीखा. Just remember, excuse, forgive, pardon, mistake,
apologize, sorry. ओके, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में दिस ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डे टू डे लाइफ while talking to someone in polite phrases and good manners for excuse me, forgive, pardon, mistake, apologize and sorry. So friends, from last 3 days we are learning basic English. I think so little bit also you have drop up in your mind. थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में आया ही होगा कि इंग्लिश कैसे स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश बोलते वक्त हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, इंग्लिश किसके सामने किस तरह से बात करते हैं, तब हमारा प्रेजेंटेशन उस पर्सन के सामने परफेक्ट होता है और उसे लगता है कि हम गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं करके। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेकेंड डे का लेक्चर यानी ए और बी सेशन कंप्लीट हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आएंगे फ्रेंड्स। ओके, बाय।